ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں جی تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کہانی۔ وہ رات گھر لوٹا تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ چوکیدار سے دروازہ کھلوا کر اندر آ گیا تھا، لیکن اس کے گھر والوں کو 10 کے بعد ہی سونے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے اسے سامنے کوئی بھی گھر کا فرد دکھائی نہ دیا۔ وہ دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی جانب جا رہا تھا جب اسے کچن سے آواز آئی۔ پہلے وہ سمجھا چلو چلتا ہوں، لیکن اسے کاؤنٹر کے پیچھے سے کسی کا سفید ہاتھ نظر آیا۔ وہ چونک کر کچن کی جانب چلا آیا اور دبے قدموں چلنے لگا، کہیں جو بھی ہے وہ بھاگ نہ جائے۔ اسے پردیس کے 5 سال کا لمبا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس نے آنے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی تھی، وجہ اس کے گھر میں موجود وہ لڑکی تھی جسے وہ بالکل بھی دیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، جس کے ساتھ زبردستی کا اس کا رشتہ جوڑا گیا تھا۔ جانے کی وجہ وہ تھی، آنے کی وجہ بابا کی ناساز طبیعت تھی، جس کی وجہ سے اسے لوٹنا پڑا۔ اس کے کف کوہنیوں تک مڑے ہوئے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہاں کسی چور کا آنا تشویش دہ بات تھی۔ کون ہو تم؟ چوری کر رہی تھی؟ شاہ زین جس رات امریکہ سے لوٹا تو سبھی گھر والے فنکشن پر گئے ہوئے تھے۔ وہ سمجھا تھا اس کے گھر والے سو چکے ہیں، لیکن اصل میں اس کے گھر والے فنکشن میں گئے ہوئے تھے۔ بس کچن میں ایک کم عمر لڑکی بھیگی آنکھوں کے ساتھ باسی کھانا حلق سے اتار رہی تھی۔ اسے دیکھ کر شاہ زین یہی سمجھا، وہ چور ہے۔ جس طرح وہ چھپ کر کھانا کھا رہی تھی اور زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، شاید اسے بھوک مٹانے کے لیے گھروں سے چوری کرنا پڑتی ہو۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے آنے اور سوال کرنے پر اس نے زمین پر پڑا اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا۔ وہ گھر میں تھی، اندر تھی، کھڑکی دروازے سب بند تھے، شاید اس کی نئی ملازمہ ہو۔ اسے نام معلوم تھے۔ جی ہورین علی، اس نے معصومیت سے نام بتایا اور واپس سے کھانا کھانے لگی۔ شاہ زین اس کے جواب پر ششدر رہ گیا۔ وہ اس کی بیوی تھی جس کے ساتھ شاہ زین کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کیا گیا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رکھا تھا اور وہ غصے میں پاکستان چھوڑ کر آج 5 سال بعد لوٹا تھا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر شاہ زین کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ تم باسی کھانا اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کیوں کھا رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ آپ پلیز تائی جان کو مت بتائیے گا، وہ مجھے ماریں گی، اس نے نم آنکھوں سے کہا اور تیزی سے اٹھ کر کچن صاف کرنے لگی۔ شاہ زین کی آنکھیں ابل پڑی۔ وہ کیوں اس کی ماں کو ایسا کہہ رہی تھی؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو میری ماں تم پر ظلم کر رہی ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ اس کی ماں کالز پر بتاتی تھی، حورین بہت زیادہ سیاست کرتی ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل کرتی ہے کہ تائی جان یتیم جو بے سہارا چھوڑے رکھتی ہیں، جبکہ ہم کہتے رہ جاتے ہیں حورین مہمانوں کے سامنے اچھے سے جایا کرو، تم اس گھر کی بچی ہونے کے ساتھ ساتھ اس گھر کی بہو بھی ہو۔ لیکن وہ تو سنتی ہی نہیں ہے۔ اسے اپنے ماں کے الفاظ یاد آئے تھے، اس وقت وہ اتنی توجہ نہیں دیتا تھا۔ اب اسے دیکھ کر یقین ہو گیا کہ وہ معصوم صورت والی خوبصورت لڑکی کس قدر چلاک لومڑی ہے۔ میری ماں کو اگر تم نے دوبارہ کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا یہاں کچن میں تمہاری قبر کھود دوں گا، اس نے حورین کے کندھے میں انگلیاں دھنسا کر کہا۔ تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کا جس سے نکاح ہوا تھا وہ وہی تھا شاہ زین، جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا اور وہ بار بار دیکھے جانے کے قابل تھا۔ تائی جان کہتی تھی انہوں نے اپنا ہیرا ایک پتھر کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، ان کا دل کتنا جلتا ہے حورین نہیں جانتی۔ اور شاہ زین کو دیکھ کر لگ بھی رہا تھا وہ ہیرا ہی ہے۔ اس نے جھٹکے سے حورین کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کی بیوی کے بارے میں بالکل ٹھیک ہی کہتی تھی کہ وہ انہیں پاگل بناتی ہے۔ وہ کمرے میں آیا اور بیگ رکھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ اسے معلوم نہ تھا سارے کے سارے کہاں ہیں۔ اس کی فیملی بڑی تھی، چچا بھی ساتھ رہتے تھے، بڑا سا بنگلہ نما گھر تھا۔ شاہ زین سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کے ایک بہن اور ایک بھائی اور بھی تھے۔ اماں ابا چچا چچی کے بچے بھی تھے، 2 بیٹیاں تھیں ان کی۔ شاہ زین کو سب پسند کرتے تھے۔ وہ ویل ایجوکیٹڈ بندہ تھا اور پیشے سے ڈاکٹر بھی تھا۔ اس کی باہر بھی دھوم تھی، وہ کافی وقت سے جاب کر رہا تھا۔ پاکستان میں اس نے ہسپتال بنانے کا سوچا تھا اور اس کا کام بھی چل رہا تھا۔ ابا اور ہسپتال کی وجہ سے وہ واپس آ گیا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن وجیہ تھی اور اس سے چھوٹا بھائی شامیر تھا۔ اس کی چچی جڑواں بیٹیاں سنوبر اور میرال تھی۔ وہ دکھنے میں بالکل الگ الگ تھی اور عمر میں حورین کے ہم جولی تھی۔ وہ سب مل کر حورین پر ظلم کرتے اور اسے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھتے تھے۔ حورین کے بابا نے طوائف سے شادی کی تھی اور کچھ وقت بعد حورین کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں چل بسی۔ باپ بیمار رہنے لگے تھے۔ انہوں نے شاہ زین کے بابا کو بلوا کر اس کی ذمہ داری اس کے تایا کو دے دی۔
उन्होंने सूरत हाल देखकर हुरैन का निकाह शाहजैन से कर दिया। निकाह के दूसरे दिन ही उसके बाबा की डेथ हो गई थी और हुरैन कब पहली बार ताया के घर आई। शाहजैन उसे बिना देखे जा चुका था। उसके बाबा ने मिन्नत समाजत से उसकी शादी हुरैन से कराई थी। शाहजैन और हुरैन ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। 5 साल पहले इसका निकाह हुआ था और अब दोनों के लिए पुरानी बात हो चुकी थी। शाहजैन बेड पर लेटा था कि मुलाजमा ने दरवाज़ा बजाकर खाने का पूछा। उसे हुरैन ने भेजा था। मुझे भूख नहीं है, लगेगी तो खा लूँगा, उसने सर्द लहजे में कहा। उसे रह रह कर हुरैन पर गुस्सा आ रहा था। हुरैन को मुलाजमा ने आकर बता दिया और खुद सोने के लिए चली गई। हुरैन भी वहीं उसके साथ सोती थी। इस बड़े से घर में हुरैन के लिए कोई जगह भी नहीं थी। वो अपना काम करके अनेक्सी में चली आई और सिंगल बेड पर ठहर गई। आज उनके ढेर सारे कपड़े प्रेस कर करके वो थक गई थी। दूसरी सुबह जब वो घर में गई तो सारे खुशी से शाहजैन से मिल रहे थे। हुरैन ने उसे एक नज़र देखा, फिर नज़रें चुराकर सीधा किचन में जा पहुंची। मुलाजिमा के साथ मिलकर नाश्ता तैयार किया। वो सब नाश्ते में इतनी सारी चीज़ें खाते थे कि उन 3 मुलाजिमाओं को भी बनाने में वक्त लग जाता था। हर एक की फरमाइश अलग अलग थी। हुरैन, मैं जब यूनी से वापस आऊँ तो मेरे लिए मैकरोनी बनाकर रखना। सनोबर ने जाते हुए हाँग लगाई तो शाहजैन हुरैन की जानिब देखने लगा। वह सर हिलाती किचन की जानिब जा रही थी जब मेराल उसके सामने आई। हुरैन, मेरा आज पुलाव खाने का दिल है, मेरे लिए दोपहर और रात के लिए वो बना देना। उसने भी बैग कंधे पर डाला और बाहर की जानिब निकल पड़ी। हुरैन दोबारा सर हिलाने लगी। मामा, ये क्या इस घर की मुलाजमा है? उसने अबरू उचकाकर सबके सामने पूछा। उसके अब्बा और चचा ने एक दूसरे की जानिब देखा। बेटा, मैं क्या कहूँ? अगर कहूँगी तो बोलोगे मैं बोलती हूँ। ये लड़की खुद से सारे काम करती है और सबके पास जा जाकर पूछा करती थी, आप क्या खाएंगे? वही बना देती हूँ। अब सबकी आदत बिगड़ गई है, इसीलिए हुरैन से अब सब फरमाइश करते हैं। उन्होंने अफसुर्दगी से कहा कि उन्हें भी ये सब अच्छा नहीं लगता। ताया जान जो अपनी भतीजी को बड़े मान से इस घर में लाए थे, अब अपनी बीवी और बच्चों के आगे बोलते तक न थे। नहीं बाबा, आपका आज डॉक्टर से चेकअप है, मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी। उसने उठते हुए कहा, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, मुझे आज ही से ज्वाइन करना है। उसने एक नज़र सबको देखा। भाई, आते हुए कुछ अच्छा सा खाने को ले आइएगा, मुझे हुरैन के हाथ के खाने नहीं पसंद, उसने बेजारी चेहरे पर सजाते हुए कहा। उसी वक्त हुरैन ने उसके सामने उसकी फरमाइश पर चाइनीज़ राइस उसके सामने रखे थे। ये अभी तुमने मेरे सामने इसे बनाने का कहा था, उसने अपनी बहन के झूठ पर आबरू चढ़ाकर कहा। हाँ, बस यही एक डिश अच्छी बनाती है, वरना इसे कुछ बनाना कहाँ आता है। सारा दिन किचन में घुसी रहने वाली हुरैन के खाने में अब नुक्स निकल रहे थे। शाहजैन ने गुस्से से हुरैन अली को देखा, जिसने पहले आदत बिगाड़ दी थी, अब इन सब की नौकरानी बनी फिर रही थी। उसे उस पर इंतहा से गुस्सा आ रहा था। खुद को मजलूम बनाने का कोई मौका वो हाथ से न जाने देती थी। मैं चलता हूँ, वो कहकर बाहर निकल गया और फिर शामिर हुरैन के सर पर पहुँच गया। जानम, मेरे भाई ने लिफ्ट नहीं दी क्या? मेरी लिफ्ट लेना पसंद करोगी? मैं तुम्हें यहाँ की नौकरानी की बजाय महारानी बना दूंगा। भाई तो पागल है, इतने हसीन और नाजुक लड़की उन्हें दिखाई नहीं देती है, उसने हुरैन के कान में सरगोशी करते हुए कहा। वो हड़बड़ा कर दूर हुई और उसे खौफजदा नज़रों से देखने लगी। वो बार बार उसे छूने की कोशिश करता था। वो घर में सबसे बिगड़ा और आवारा किस्म का लड़का था। वो यूनी के बहाने नशा और क्लब जाने का आदी था और उस पर किसी की निगाह तक न थी। हुरैन उसके सामने कम अज़ कम आने की कोशिश करती थी। उस वक्त भी वो भागने पर तुल रही थी। वजिया किचन में आई तो शामिर उससे दूर हुआ। उसको कोई काम वाम सिखाओ जी, मेरा आज कितना दिल था निगटिस खाने का। अब यूनी से लेट आऊँगा, वो कहते हुए एक नज़र हुरैन को देखकर बाहर की जाने बढ़ गया। जब हुरैन ने उसके जाने पर सुकून का सांस लिया था, वरना जब तक वो उसके पास होता था फिज़ा में मौज सारी ऑक्सीजन खींच लेता था। वजिया उसे देखने लगी। काम करो बीबी, भाई आ गए हैं तो ये मत समझना हम उनकी ज़िंदगी में तुम्हें शामिल होने देंगे। तुम्हारी तो कोई क्लास ही नहीं है, खुद को देखा है कभी तुमने? भाई के काबिल किसी तौर पर भी नहीं हो। मेरा भाई सर्जन है और तुम हमारे घर की मुलाजमा। वो तनफ़ुर से कहती हुई वहाँ से चली गई, जबकि हुरैन की आंखों से आंसू बह निकले। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ताई किचन में आई, उसे रोते देखकर तिरछी नज़रों से देखा। बीबी, अगर ये आंसू मेरे बेटे के लिए बहा रही हो तो भूल जाओ, मैं उसकी तलाक करवा कर तुमसे किसी और अमीर और उसकी क्लास की लड़की से शादी करूंगी, जिसे बोलना और इस सोसाइटी में मूव करना आता हो। तुम्हें तो बोलने के लिए ज़बान देना पड़ती है, बस तुम घर के कामों के लिए ही ठीक हो। जब हमें लगेगा अब तुमसे काम नहीं बन रहा तो तुम्हारे लिए लड़का देखकर शादी कर देंगे। शम्मो, तुम्हारे गांव में कोई था ना जिसकी तलाक हो गई थी? एक बच्ची है उसकी।
ताई ने हुरैन को सुनाते सुनाते याद आने पर अपनी दूसरी मुलाजमा शम्मो से पूछा। वो उन्हें देखने लगी। जी बेगम साहिबा, उसकी बेटी 2 माह की है। उसने अफसोस करते बताया। तो बस उसकी तलाक हो जाए मेरे बेटे से, इसे ही देख लेना। इस मर्द के लिए अच्छी खूबसूरत है, दोनों का दिल बहल जाएगा। ताई ने तंजिया कहते हुए बाहर की जानब कदम बढ़ाए तो हुरैन की सिसकी उभरी। वो अपने बेटे से तलाक दिलवा कर उस पर जुल्म की नई दास्तान लिखने के लिए बेचैन थी। हुरैन अली ने शम्मो की जानब देखा। बेगम साहिबा को बोलने दे। मुझे यकीन है अपने छोटे साहब जिस दिन तेरे दिल में झांकने लग गए, उन्हें तुझसे बेहतर और अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। ये बेगम साहिबा तो बस तेरे पीछे पड़ी रहती हैं। इन्हें क्या मालूम जिस बेटियों पर ये नाज करती है वो रातों को कितने मर्दों से बातें करती हैं। शम्मो ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। वो इस घर की बहुत पुरानी मुलाजमा थी। उसका काम हुरैन की उम्र जितना पुराना था। हुरैन ने कुछ ना कहा। सबकी फरमाइश जो थी उस पर काम करने लगी। भाई शादी कब करेगा? अब तो बिल्कुल सेटल हो गया है। पहले बहाना था अभी पढ़ रहा हूँ, फिर कैरियर स्टार्ट करना है। अब कौन सा बहाना है मेरे लाडले का? उसके करीबी दोस्त ने कैफ़े में आते ही शाहजैन को आड़े हाथों में लिया। वो हंसने लगा। छम से उसकी आंखों के सामने हुरैन का सरापा आया। उसकी बीवी थी और वो निकाहशुदा था। ये बात उसने अपने सर्कल में किसी को भी नहीं बताई हुई थी। उसको हुरैन से नफरत थी। वो उसकी माँ ने उसके दिल में भरी हुई थी। क्या सोच रहा है? कोई प्यारी सी भाभी देख रखी है क्या? हमसे छुपा रहे हैं बस। बड़ा मीसना है, उसके दोस्त ने दोबारा से कहा तो वो उसे देखने लगा। मोहब्बत पर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। जब भी किसी से मोहब्बत होगी समझ ले मैंने शादी कर ली। उसने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। हवा में नमी सी घुली हुई थी और मौसम काफ़ी ठंडा था, लेकिन शाहजैन इतने साल बाहर रहकर आया था, इसके लिए ये ठंड कुछ भी नहीं थी। वो हुरैन के बारे में सोचने लगा कि ये रिश्ता अस्त रखना था या उसे हुरैन को छोड़ना था। उसकी समझ ना आया वो क्या करे। वो थोड़ी देर बाद ऑपरेशन में मसरूफ़ हो गया था। वो रात 10 बजे अस्पताल से वापस आया और हुरैन को हमेशा की तरह किचन में पाया। उसे पानी में भीगा हुआ देखकर किचन में चला आया, जो बर्तन धोते हुए खुद को भी गीला कर रही थी। ये सब क्या है? उसने सर्द आवाज़ से पूछा। वो चूं कर पलटी। उसका दुपट्टा साइड पर पड़ा था जिसकी वजह से उसको सुबकी महसूस हुई। फ़ौरन से साबन वाले हाथ धोकर उसने ज़ैन शाह की जानिब देखा और दुपट्टा उठाकर फैला लिया। जी, आपको कुछ चाहिए? वो समझी वो खाना खाने या कोई फरमाइश करने आया है। घर वालों को नौकरानी बनकर दिखाने से कितने तमगे तुम्हारे नाम हो गए हैं, या तुम्हारे नाम के कितने झंडे लग गए हैं। उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने घर वालों को खासा बिगाड़ रखा था। ये तो मेरा फ़र्ज़ है। उसने ताईजान के लिए अल्फाज दोहरा दिए। उन्हें मालूम था ज़ैन शाह उससे बाज़ परस ज़रूर करेगा, जिसकी वजह से वो पहले ही हुरैन को कह गई थी। अगर ये बताया कि ताई और चची काम करवाती और खाना भी नहीं देती हैं तो उसका इस घर में आखिरी दिन होगा और वो उसे उठाकर बाहर फेंक देंगी। और वो सदा की डरपोक लड़की। उसने फ़ौरन उसकी बात सुनकर अमल दरामद शुरू कर दिया। फ़र्ज़ मेरे मेरे खाते में भी तुम्हारे फ़र्ज़ निकलते हैं। उसका क्या? वो उसकी जानिब आते हुए बोला। उसके गीले कपड़े देखकर उसे ठंड लग रही थी। न जाने वो नाजुक सरापे वाली लड़की कैसे बर्दाश्त कर रही थी। आप मुझे बताएं मैं आपकी क्या खिदमत करूं? वो उसकी जानिब हैरत से देखते हुए बोली। उसके कदम एक एक करके उसकी जानिब उठ रहे थे। ज़ैन शाह। इतने में पीछे से मेराल ने आकर पुकारा। वो उसकी जानिब पलट कर देखने लगा। बड़ा हूँ, तुमसे भाई कहने का तकल्लुफ़ कर लिया करो। उसने तेज़ लहजे में कहा। भाई होगे ऐरी गैरी लड़कियों के, मेरे तो ज़ैन शाह हो। उसने एक अदा से बाल पीछे करते हुए कहा। ज़ैन शाह के माथे पर बल पड़े। इस बात का मतलब जान सकता हूँ मैं? उसके पूछने पर मिराल गड़बड़ा सी गई। ताई चची ने प्लान बनाया हुआ था हुरैन को उसकी ज़िंदगी से निकाल कर मिराल का निकाह ज़ैन शाह से करवाएंगी, इसीलिए वो अभी से उसे ज़ैन शाह कहती थी और उसके आगे पीछे फिरने लगी थी ताकि उसकी नज़रें मिराल से जुड़ जाए और वो हुरैन की जानिब ना देखे। ये सब प्लान का हिस्सा था। वो इस पर अमल कर रही थी लेकिन नहीं जानती थी सामने ज़ैन शाह है जिसे लड़कियों का लिमिट क्रॉस करना बिल्कुल पसंद ना था। मैं वैसे ही मजाक कर रही थी। ताई जान ने मुझसे कहा था ज़ैन शाह के लिए आज कुछ अच्छा सा बना दो, इसलिए आते ही मैंने आपके लिए ये मीठा बनाया था। मिराल फ्रिज की जानिब बढ़ते हुए बोली। इस झूठ से हुरैन आदी थी। उसकी पकी चीज़ों पर नाम अपना लिखवा कर किसी को भी पेश कर देती थी। ज़ैन शाह मीठे की शक्ल देखकर मुतासिर हुआ, जो काफ़ी खूबसूरती के साथ सजा हुआ था। उसने चम्मच लेते हुए फ्रूट ट्राइफल मुंह में रखा। वो आंखें बंद किए उसका जायका महसूस करने लगा। बहुत मज़े का है। मैं मीठा नहीं खाता लेकिन इसको पूरा खा सकता हूँ। मिराल तुम तो बहुत अच्छी कुक हो। उसने तारीफ़ करते हुए चम्मच पर चम्मच मुंह में डाला।
हुरैन बर्तन धोती किचन समेट रही थी। नेक्स्ट टाइम कहो तो लाजमी बनाना। उसने एक नज़र हुरैन पर डालकर कहा कि इसे जता रहा हो, शौहर की खिदमत कैसे की जाती है। वो वहाँ से चला गया तो मिराल उसके सामने आई। जैन शाह मेरा है हुरैन। उसने हुरैन के कान में सरगोशी की। जो चीज़ मेरी होगी मुझ तक पहुँच जाएगी। मिराल, अगर जैन शाह किस्मत में नहीं है, वो निकाह में होते हुए भी नहीं मिलेंगे। उसने बेतासर लहजे में कहते बार की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। आज काफ़ी खाना बचा था, जिसकी वजह से हुरैन को खाने को मिल गया था। वो कहती हुई वहाँ से निकल गई। उसे क्या कुछ भी बोले, ताई और अम्मा उसके साथ थीं। वो जैन शाह को उसकी झोली में डालकर ही छोड़ेंगी। मिराल मुतमईन थी। आज वजीह को देखने लड़के वाले आ रहे थे। जैन शाह को जल्दी हस्पताल से आने का कहा था। उसे आज अपने हस्पताल के विज़िट पर जाना था, लेकिन उसे सब कैंसिल करना पड़ा। और फिर शाम के वक्त वो घर पहुंचा तो काफ़ी रश था। लड़के वाले लड़के समेत बैठे हुए थे। हुरैन रफ से हुलिये में वहाँ डाइनिंग टेबल पर लवाजमात सजाने में मसरूफ़ थी। वजीहा उनको सलाम करने जा रही थी कि हुरैन को स्वीट डिश लिए टेबल पर आ रही थी। बचाते बचाते उससे टकरा गई और वजीहा के कपड़े बिल्कुल ख़राब हो गए। उसने पहले गुस्से से हुरैन की जानिब देखा और फिर ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रख दिया। शाहजैन, जो उनसे बातों में मसरूफ़ था, थप्पड़ की गूंज पर पलट कर देखा और साकत रह गया। उसकी बहन ने हुरैन पर हाथ उठाया था। जैन शाह वहाँ से उठ खड़ा हुआ। सारे मेहमान भी हक्का बक्का थे। यू इडियट बच, वो उसे गुस्से से देखकर दहाड़ी थी। ये सूट मैं लिमिटेड सील से लाई थी, पता भी है कितने का है। उस पर पैसों का धौंस जमा रही थी। हुरैन बिना आवाज़ के आंसू बहा रही थी। वजी तमीज़ से, तुम्हारे सूट की कीमत किसी की इज्जत से बड़ी नहीं हो सकती। जैन शाह ने उसे कहा तो वो उसे देखने लगी। आप तो बोलेंगे, आपकी बीवी जो है, मुलाजमा को बीवी बनाकर रखा हुआ है। ऐसी बीवी को तो 2 हरफ कहकर चलना चाहिए। उसकी ज़बान कैंची की तरह चलती थी, सब जानते थे, लेकिन आने वाले मेहमानों से बिल्कुल लिहाज ना किया था। उनके सामने भी वो आपस से बाहर हो गई थी। वो सब कानों को हाथ लगाए वजीहा को देख रहे थे। ज़बान संभाल कर बात करो वजी, उसने टोकते हुए हल्की आवाज़ आते हुए रोका। मैं ज़बान संभालूं और आप अपनी बीवी नहीं संभाल सकते। आते जाते लोगों से टकराती है और कभी कभी आपके छोटे भाई से फ्लर्ट करती है। आप संभाले, आपकी बीवी से हुस्न और जवानी संभाली नहीं जा रही है। उसने कहते वहाँ से वॉकआउट किया। वो हैरत और गुस्से से हुरैन को देखने लगा। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था उसके निकाह में होते हुए उसके छोटे भाई से फ्लर्ट करी। वजीहा के नए इंकशाफ पर वो लब भींच गया। मेहमानों की वजह से खामोश, वरना उसके हाथ हुरैन पर उठने के लिए तैयार थे। वो मेहमानों की जानिब पलटी तो हुरैन अनेक्सी की जानिब भाग गई। शमो ने नफ़ी में सर हिलाया। वजी कुछ देर बाद कपड़े डील किए वहाँ पहुँची और सबसे मिली, लेकिन उनका अंदाज़ काफ़ी बदल सा गया था। उन लोगों ने थोड़ी सी टेक पर किसी को मारते देखा था। वो लोग शरीफ थे, इस किस्म की बातों से परहेज़ करते थे। उन लोगों ने बिना किसी खाने की चीज़ को हाथ लगाए कदम बाहर की जानिब बढ़े थे। ताई जान अपनी बेटी के सर पर पहुंची। ये क्या हरकत थी? मालूम था कि आज वो सब आने वाले हैं और ख़ास तौर पर तुमसे मिलने आने वाले हैं। फिर ये क्या तमाशा लगाया था? तुम्हें मालूम है इन लोगों ने तुम्हारी तरफ दोबारा देखा तक नहीं था। वो लड़का भी इशारे कर रहा था, यहाँ से। तुम्हें कब अकल आएगी, कब कहाँ क्या करना है? उसकी माँ डांटते हुए पूछ रही। वजी ने कान से मक्खी उड़ाई। आपने देखा हुरैन की शक्ल कैसी हो गई थी और भाई का मुंह कितना छोटा सा हो गया था। शामिर फ्लर्ट है उससे, लेकिन इससे पहले भाई कुछ ऐसा वैसा देखे ने उनका नज़रिया ही बदल दिया। अब जब भी कुछ देखा सारा इल्ज़ाम उस हुरैन के खाते में जाएगा। जो आप प्लान कर रही कामयाब हो जाएगा। उसने मुस्कुराकर चुटकी बजाई। वो मुस्कुराकर उसके सामने बैठ गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था वजी, ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। उसकी माँ ने फ़खरिया अंदाज से अपनी बेटी को देखा। दोनों हंसने लगी। अगले दिन ही लड़के वालों ने कॉल करके माजरत कर ली थी। ताई जान का काफ़ी सदमे में थी। पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता हाथों से निकल गया था। वजी की पर इतना असर नहीं पड़ा था और जैन शाह की नज़रें हुरैन की अब हर एक हरकत पर होती थी, ख़ासकर जब शामिर घर पर होता था। उस रात शामिर अकेला बैठा खाना खा रहा था। हुरैन सामने खाना लगा रही थी। जैन शाह अस्पताल से आकर कमरे में था। उसका दिल घबरा रहा। वो बाहर निकल कर आया। सीढ़ियों पर खड़ा वो हुरैन और शामिर को देखने लगा। वो उसके सामने खाना लगी। अचानक उसका आंचल ढलक कर एक जानब से फिसल गया। शामिर ने हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा कंधे पर रखा और हुरैन उसे देखने लगी। बस यहाँ तक ही जैन शाह का सब्र था। वो तेज़ी से उतरता आया। कदमों की आवाज़ पर उन दोनों ने सामने देखा। वो तेज़ी से हुरैन तक आया। वजी ठीक कह रही थी। हुरैन के हाथ थामे और ऊपर की जानब बढ़ गया। शामिर हैरत से देखने लगा।
फिर कंधे उचकाकर खाना खाने लगा। उसे क्या, वो बस फ्लर्ट करता था, उसे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता था। उसका भाई उसे मारे पीटे कुछ भी करे, वो बस अपना दिल घर में बहलाता था। शामिर खाना खाकर उठकर कमरे में चला गया और हुरैन पर क़यामत बर्पा हो गई। तुमसे अपना हुस्न संभाला नहीं रहा, या तुम्हें मर्द चाहिए? वो गुस्से से दीवार पर हाथ मारते हुए पड़ा। हुरैन डर कर रोने लगी। शामिर भाई ने खुद से वो हिचकी लेती बोली, उसके साथ जाने की ज़रूरत ही क्या है? उसको खाना पास से देने की तकलीफ़ ही क्यों कर रही हो? वो उस पर गुस्सा करने लगा। वो सिसकी भरते हुए लरज़ गई थी। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, शौहर होने का मतलब, ताकि गैर मर्दों पर से तुम नज़रें हटा सको और मेरी कुर्बत में गुजरे लम्हे को सोच कर बंदी रहो। वो शर्ट के बटन खोलते हुए गुस्से से दौड़ा। वो खौफ से रोने लगी। नहीं प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करें। आपने मुझे कबूल नहीं किया है, ये गुनाह है। उसने भागने की कोशिश की। गुनाह? तुम मेरे निकाह में हो, गुनाह वो है जो तुम मेरे भाई के साथ कर रही हो। उसने भागती हुई हुरैन को कंधे से पकड़कर बेड पर डाल दिया। उसकी मजबूत गिरफ्त की वजह से हुरैन हिल भी ना सकी। साथ वो उसे तड़पाता रहा और वो उसकी जालिम गिरफ्त में मचलती रही। सुबह तक वो बड़ी सिसक रही थी। फिर अपने बेजान वजूद को उठाकर वो में आई और फ्रेश होकर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू फिसल कर तकिया को गीला कर रहे थे। वो इस हालत में वो सो गई थी। सुबह उसे ना पाकर घर में सभी गुस्से होने लगे थे। शमो ने बताया उसे बुखार हो रहा है। जैन शाया तो वहाँ पास खड़ा था। उसे मालूम है काम है, इतनी पहले डाल दी, अब मोहतरमा मार पड़ी हैं। ताई जान चची जान दोनों हिस्से से चीख रही थी। हुरैन की तबीयत ठीक नहीं है। जैन शाह ने पूछा। उसे पिछली बात बखूबी याद थी। हाँ, छोटे साहब सुबह कमरे में आई थी और रही, फिर बुखार चढ़ गया। वो उसकी बात सुनकर लब भींच गया। शौहर ने हाथ सूल किया तो बुखार चढ़ गया और छोटे भाई के साथ बिना किसी रिश्ते के लगी हुई थी। चेक करता हूँ कहाँ है उसका कमरा। 3 माह में उसे ये तक मालूम ना हो सका था वो कहाँ है। ताई जान गड़बड़ा गई। उसे सनोबर के बराबर वाले कमरे में ले आओ, ताई ने हल्के आवाज में कहा। शम्मो सर हिलाकर चली गई और पिछले दरवाजे से उसके वजूद को बमुश्किल थाम कर वहाँ तक लाई और फिर जैन शाह को इतला दी। वो मेडिकल बॉक्स लिए वहाँ पहुँचा। वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी। मेरी कुर्बत इतनी जहर है तुम्हारे लिए, उसने गुस्से से हुरैन के कान के पास बुलाते हुए पूछा। उसे नम आंखों से देखने लगी। जैन शाह को वो आंखें मालूम और उदास सी मालूम हुई थी। उसने बुखार चेक करते मेडिसन दी और उसे कंफर्टर में रहने की हिदायत करता हुआ चला गया। जैन शाह अपने गुस्से में क्या अमल 4 दिन में भूल गया था, जबकि वो बारी सोच सोच कर तड़प जाती थी। मिराल, ये चाय शाह को दे आओ, चची, उसकी माँ ने मिराल से कहा। खुशी से उठी और जैन शाह के कमरे की बाहर खड़ी हो गई। फिर टा गले में डालकर अंदर आई। उसे एक नज़र देखकर शाह अपने काम में मसरूफ़ हो। मेरे का सिर्फ हुरैन को भेजा करो, उसने सर्द लहजे में कहा। वो देखने लगी, फिर पाँव पटक कर बाहर चली और माँ से शिकायत करने लगी। ताई जान ने बीमार हुरैन की इस बात चुटिया ही पकड़ ली थी। समझती क्या हो अपने आप को? हूर हो, परी। मिराल तुमसे काफ़ी ज़्यादा हंसी और वही मेरी बहू की, उन्होंने गुस्से से कहते उसे छोड़ा। आजकल वो सनोबर के बराबर वाले कमरे में थी। जैन शाह उसका चेकअप करता था। ताई जान नहीं चाहती थी जैन शाह को भी हो। वो शुरू से अनेक्सी में रहती हुई आई है। मैं जगह पर जाना चाहती हूँ, शम देखकर हुरैन ने कहा। तुम्हारी कौन सी जगह? जैन शाह ने दाखिल होते हुए पूछा। वो मैं हड़बड़ा गई। छोटे साहब, बेगम साहिबा ना, अभी वो कुछ कहती मिराजी से अंदर आई। शम्मा, तुम्हें मामा बुला रही हैं, उसने घूरते हुए वो मुंह फुलाकर बाहर निकल गई। वो उसका करता वहाँ से चला गया। ज़रूरी काम से अमेरिका जाना था, हफ्ते गुजर गए थे। हुरैन की तबीयत बेहतर होने लगी थी। जैन शाह उसे देखकर अमेरिका 2 हफ्ते के लिए चला गया था। उसके जाने के ठीक 3 दिन बाद हुरैन की हालत बहुत ज़्यादा होने लगी थी। उसकी उल्टियाँ बंद नहीं हो रही थी। उसको मेरे सामने से दूर कर दे, इतना खाती है, अब उल्टियाँ की है, ताई जान ने नफरत से कहा। बड़ी बेगाइबा, इसको करने दें, इसकी तबीयत कहीं भी ठीक नहीं है, शम्मा ने साइड लेते हुए कहा। वो उसे घूरने लगी। यदि फूफो की बेटी लगती है, हर वक्त इसकी तरफदारी करती रहती हो। उन्होंने गुस्से से घर का वो उसे लिए नेक्स्ट लिए। सच सच बताओ हुरैन, ये सब क्या है? वो उसे और तबीयत से अंदाज़ा लगा चुकी थी उसके साथ मसला क्या हुआ है। क्या सच? हैरत से पूछने लगी। एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से ये आदमी अधूरी बात, तो माँ बनने वाली है ना? उनकी वाकर हुरैन की आंखें फट पड़ी थीं। शाहजैन क्या किया था उस रात? वो हुर को देखते पूछने लगी।
और फूट फूट कर रोती उन्हें सच बताने लगी। वो सर हिलाती गई। ज़ैन शाह को मालूम है उसने क्या किया है, तो उसे मालूम होना ही है। अब तेरे साथ क्या होगा इस घर में। उन्होंने हुरैन को समझा किसी तरह ये बात ज़ैन शाह के आने तक बाहर ना देना कि उसने कैम किया है, वरना वो उस पर इल्ज़ाम लगा निकाल देंगी। लेकिन किसको कुछ और ही मंजूर था। एक हफ्ते तक उसने किसी तरह खुद को काबू कर काम काज किया, लेकिन उसके 4 दिन पहले वो किचन में बेहोश हो गई थी। ताया जान को देखकर आया हुआ था। उसने हुरैन को देखा तो खुशखबरी दी जो उन पर भी की तरह गिरी थी। वो सब हैरत से हुरैन को देख रहे थे। बता किसके साथ माला करके आई है, किसका बच्चा है ये। मैं कहती थी ना इस किरदार अच्छा नहीं है। उसकी ताई ने वावा मचाकर सर पर घा रखा था। हुरैन कुछ कहने की कोशिश में रोने थी। उसकी ना ताई सुन रही थी ना जी। उसे गुस्से ताया ने घर से निकाल दिया। जो इस नाजायज औलाद का बाप है उसके पास लेकर जा इसको। मेरा बेटा जब लौटेगा तुझे तलाक भेज देगा। हिराल खड़ी सीने पर लपेटे मुस्कुरा रही थी। उसके कुछ किए बिना ही रास्ता साफ हो गया था। हिराल और वजीब भी उसके किरदार पर उंगलियां उठा रही थी और हंस हंस कर उसका मजा आ रही थी। वो कहाँ गई थी कि कुछ मालूम ना था। बेसहारा और आसरा का कोई परस्ताने था। 4 बाद ज़ैन शाह घर लौटा था। वो हमेशा रात के पहर वापस आया था। वो इससे पहले घर के अंदरूनी हिस्से में करता। शम्मो ने उसे आवाज़ दी। छोटे साहब। उसकी आवाज़ सुनकर वो अनेक्सी की जानिब देखा। साहब आपसे कुछ बात करनी बहुत ज़रूरी है। उसने बेबसी से हथेली मसलते हुए कहा। उसका अंदाज बता था कोई बहुत बड़ी बात हो। एक कदम घर के अंदर जाने की बजाय इसी की जानिब उठ गए थे। शम्मो ने दरवाज़ा लॉक्ड किया और उसे बेड पर बैठने कहा। ये हुरैन का बेड है, बताया। वो हैरत का चेहरा देखने लगा। आपको उसके बारे में सब झूठ बताया गया। वो वैसी नहीं थी जैसे दिखाया गया। शामिर साहब तंग करते थे। उसने ताया और ताई से शिकायत की, लेकिन उन्होंने उल्टा उसे सुना डाली और कहा वो इस घर का है, ऐसी बातें नहीं देती हैं। बेचारी रोती रही लेकिन किसी ने ना सुनी। मैंने खुद देखा था वो बदतमीजी करता था। हुरैन उसकी मौजूदगी में दूर रहती थी। घर में सब जानते हैं शामिर साहब क्लब नशा इन सब के आदी हैं और उनके लिए लड़कियां खेल हैं, टाइम पास। शमसू साफ करते आगे बात जारी की। वो इसे यहाँ आई है तब से नौकरों का सलूक करते हैं। उसे ज़बरदस्ती खाते हैं, अगर वो इनकार से खाना भी नहीं देते। उसने हमेशा बासी खाना खाया है। उस बच्ची को कभी ने ताज़ा खाना चखने नहीं दिया। अल्लाह ऐसे जालिम घर वाले किसी को न दे। उन्होंने सिसकी लेते हुए कहा। वो उसने लगा जैसे कोई हैरत से कोई अजूबा आता है। कहाँ है हुरैन? उसने खोते जिस दिल पूछा था वही जानता था। उसे उसकी तार से निकाल दिया। वो माँ बनने वो रोती हुई बोली। ज़ैन शाह सर घूम गया और फिर उसे वो गुस्से से भरी याद आई। उसने अपना हक वसूल किया था। उसने सर पर हाथ फेरा और झुकाकर वापस बैठ गया। मुझे हुरैन से मिलना है, प्लीज़ मुझे बताएं वो कहाँ है। मैं जानता हूँ वो बाकिरदार है, वो बच्चा मेरा है। उसने आंसू बहाते हुए कहा। उसकी आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थी। उसने इस पर यकीन किया जो उसकी माँ उससे कहती थी। मैं नहीं बता सकती, हुरैन ने मना किया है। कहती है वो उसका बच्चा है, वो पाल लेगी। हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। अब बहुत हो गया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसने वही अल्फाज दोहरा दिए जो हुरैन ने कहे थे। मैं उसका शौहर हूँ शम्मो, उसने बेबसी से कहा। वो कहती है जिस शौहर कभी ना पूछा, बस जायज़ हक ता लिया, उससे उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। वो नाउम्मीद होकर जी सकती है। वैसे भी उसे बस अपने बच्चे की परवाह है। शम्मो बात सुनकर उसका सर फटने लगा था। मुझे प्लीज़ बता दें वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। उसने इल्तिजा की थी। अब माँ ने उसके बच्चे को जायज़ कहा था और ये कि वो आप तलाक दिलवाएंगी, इसी वजह वो आपसे नहीं मिलेगी। उससे डर है आप उसे तलाक दे देंगे। शम्मो ने उसका खौफ बताया। वो उनकी जानिब हाथ जोड़ गया। अब प्लीज़ मुझे एड्रेस दे दे, मैं खुद सब हैंडल कर लूँगा। उसकी बेबसी उसकी आंखों रात से साफ नजर आ रही थी। शम्मो ने उसे एड्रेस दिया। वो सीधा घर में जाने की बजाय गाड़ी लेकर उस पर पहुंचा। एक बड़ी अम्मी ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने दिया। वो शम्मो की सास थी। हुरैन? उसने पूछा। उन्होंने एक कमरे की जानिब इशारा किया। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। वो सामने ज़मीन पर नमाज बिछाए बैठी दुआ मांग रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। उसके सामने बैठा उसे देखे गया। उसकी मासूम सी सूरत सामने थी। उसके चेहरे पर पिलाहट देखकर अंदाजा हो रहा था वो किस कदर अजियत में रही थी। ज़ैन शाह ने गिल्टी के अंदर उतारी। जो बात
बार बार गले में अटक से परेशान कर रही थी। वो दुआ मांगकर चेहरे पर हाथ फेर कर उसने देखने लगी तो हैरत से ज़ैन शाह को देखा। उससे बढ़कर हुरैन को पकड़ गले से लगा लिया। उसकी इस हरकत पर हुरैन चौंक सी गई। आप? उसने हैरत से गले के पूछा। हाँ मैं, सॉरी बहुत देर कर दी आने में। उसने हुरैन थपकी देते हुए कहा, आप प्लीज़ मुझे तलाक मत दीजिएगा, प्लीज़ मुझे ऐसे ही रहने दें, मैं सच में आप तंग नहीं करूँगी। उसने रोते हुए डर मारे उसकी शर्ट मुट्ठी में भींच कर कहा, सच में ये नाजायज़ औलाद नहीं है, ये आपकी औलाद है, मुझे पता है। आप नहीं मानेंगे लेकिन मैं बेहया नहीं हूँ। उसने ज़ैन शाह को सुना ही कहा, वो बस खौफ से बोले जा रही थी। ज़ैन शाह ने आंखें कर उसे थपकी देते सब कुछ सुना बिना कुछ कहे। फिर जब वो सिसकी भरने लगी और खामोश हुई, ज़ैन शाह ने उसका चेहरा आगे की जानिब किया। मैं अपनी औलाद मानता हूँ, तुम मेरी भी हो और ना मैं और न कोई और तुम्हें इल्ज़ाम दे सकता है। अब इल्ज़ाम देने वाले की ज़बान खींच लूँगा। बेफ़िक्र रहो, मुझे जब तक इल्म था तब तक तुम्हें गलत समझा। मैं प्रॉमिस करता हूँ सच में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दूँगा तुम्हें, तुम्हारे सारे गम मेरे होंगे। उसने मुस्कुरा उसके माथे पर लब रखे रोने लगी। आई एम रियली सॉरी, जो सज़ा दोगी मेरी ताही की मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। और प्लीज़ बस मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे करीब आने के बाद महसूस हुआ था मैं सुकून तो तुम में है और मैं अपना काम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हें मुकम्मल तरह से हासिल कर सकूं। लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ तुम पर कई टूट पड़ी है। उसने नरमी से हाथ थाम कर लब से लगाए। हुरे उसके हाथों पर अपना सर रख दिया। मैं गई कहाँ थी? उसने आंखें मूंदते हुए कहा। वो उसे अपने पास लिटाकर खुद बैठ, वो मिनटों में हो गई थी। ज़ैन शाह की कमर अकड़ थी लेकिन हुरैन की नींद ख़राब होने के ख्याल से खुद को हिल से रोका। वो पुरखून सो रही थी। ज़ैन शाह ने उसे देर बाद उठाकर बैठ डाला कि बढ़ती रात के साथ से में शिद्दत आ रही थी और ख़ुद उस पास बैठा सोच गुम था। सुबह की पहली किरण के साथ ज़ैन शाह घर से निकला था। उसका रुख अपने घर की जानिब था। वो घर पहुंचा और सामने का मंजर देखा। सब हंसी मजाक रास्ते में मसरूफ़ थे। ज़ैन शाह उनके सामने खड़ा हो गया। उसने ज़ोर से ताली बजाई। मेरी बीवी को घर से निकालकर यह खुशी मनाई जा रही है। उसने ऊंची आवाज़ में धाड़ से पूछा। सब साकत व जह होते उसका अंदाज देने लगे। वो ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा और अकड़ा हुआ था। वो बदकिरदार थी। ताईजान ने उठ कहा, आपके उस बेटे के किरदार के बारे में आप सब जानते हैं। आपने कभी उसे किरदार कहकर घर से क्यों नहीं निकाला? बातों के साथ वक्त गुजरता है, उस वक्त आप लोग आंखें क्यों बंद कर लेते? उसने धाड़ते हुए पूछा। शामिर के लब भी गए। आंखें सुख हुई। वो तेज़ी से उठा और ज़हरा को मारने के लिए लगा। जनशाह ने उसे पकड़कर पीट डाला। मेरी बीवी पर अपनी गंदी नज़र है, तेरी भाभी है ना वो? उसे मारते हुए जनशाह भूल गया था वो सगा भाई है। मेरी वापस चाहिए। उसने वे एक कहा से निकाल किसकी नालाद थी? उसकी कोख। चच्ची ने कहा, अपनी बेटियों की माँ के हैं, नए लड़कों घूमती हैं, मैं खुद निराल के लगा रही। मैं इसकी लड़की ना भी पसंदता। हुरैन दार है और देखो आप न जा रही हैं वो औलाद है और बात करें। उसने सिरदार और ठठा देने वाले लहजे में कहा तो सब के सब साकत रह गए। मेरी बीवी थी और मैं जो चाहे करूं, आप लोग होते कौन है? मेरे आने से पहले आप लोगों ने फैसला कैसे किया? आप लोग जानते हैं इस घर के अलावा उसका कोई घर नहीं है। कोई ऊंच नीच हो जाती तो मैं क्या करता? वो गुस्से से चीख रहा था। सब के सब डरे हुए थे। ताया और चचा भी उसके सामने कुछ बोलने के काबिल ना रहे थे। बासी खाना खिलाते हुए एक पल को तरस ना आया। वो आप लोगों का खून है। उसके आंसू गाल पर फिसल रहे थे। मेरी बीवी पर इतने जुल्म किए और उसे ही जालिम बनाकर पेश करते रहे। क्यों मामा क्यों? वो धाड़ा। आज से आप लोगों का और मेरा रिश्ता ख़त्म। आप लोग इसे यहाँ लाए, बेटी बनाने का वादा किया, मरते हुए से झूठ कहा। मैं यहाँ खड़ा झूठ बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं अपनी बीवी पर उठने वाली एक एक उंगली को तोड़ दूँगा। उसने गुस्से से कुर्सी को ठोकर मारी और ऊपर सामान पैक करने गया। उसने शम्मा को बुलाया। हुरैन का ज़रूरी सामान दे दें, उसने ऊपर से कहते कमरे में आकर बिना कुछ कहे
सामान पैक किया था। वो आधे घंटे बाद बैग्स लेकर गाड़ी में डाल रहा था। आइंदा आप लोग हुरैन के साथ मेरी भी शक्ल नहीं देख पाएंगे। दुआ करें आपको उसकी आह ना लगे। उसने कहते तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पहले वो अपने घर का इंतज़ाम करने गया। उसे उसके मुताबिक घर मिल गया था और फिर वो हुरैन की तरफ आया। वो सुबह उठकर समझ रही थी वो सब एक ख्वाब था। ज़ैन शाह वहाँ आया ही नहीं था। उसने ख्वाब में देखा था। हुरैन अभी दवा लेती सोच रही थी। ज़ैन शाह मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। आप? वो चूम कर पूछने लगी। मतलब मुझे हर बार आकर यकीन दिलाना पड़ेगा मैं ज़ैन शाह तुम्हारा शौहर हूँ? उसने आबरू चढ़ाकर पूछा। आप रात में भी आए थे? वो उसे देखती पूछने लगी। हाँ, और तुमने मुझे प्यार भी किया था, वो याद नहीं तुम्हें? वो शरारत से आंखें घुमाते हुए बोला। वो ब्लश करने लगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने नफ़ी की। अच्छा सामान बांध लो, हम अपने नए घर में जा रहे हैं, उसने कहते हुए हुरैन को खड़ा किया। नए घर? वो हैरान हुई। हाँ, नए घर जहाँ में तुम और मैं रहेंगे, उसने हुरैन को कमरे में लाते कहा। वो हैरान परेशान दोनों थी। उसने उसी परेशानी में सामान पैक किया और चादर लेकर गाड़ी में आ बैठी। अम्मा ने दुआएं दी। हुरैन अभी तक ख्वाब के ज़ेरे असर थी। वो नया घर में पहुंचे। वो बहुत खूबसूरत और छोटा सा था। 3 कमरे और लाउंज गार्डन पर मुश्तमिल। वो घर को हैरत से देखने लगी। ये हमारा घर है? उसने हैरत से पूछा। हाँ, हमारा, उसने मुस्कुरा कर बताया। उसने हुरैन को फ्रेश होने भेजा। सालों की बीमारी लग रही थी। वो उसके सालों की बीमार लग रही थी वो, और उसके आने के बाद वो खुद भी फ्रेश होने चला गया। रात से अखबार फिर रहा था। हुरैन किचन में आई कि दोपहर के लिए कुछ बना ले। यार मेरी बीवी किचन में खड़ी है, जल्दी भेजो। हुरैन ने चूक कर उसे देखा। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मेड आ रही है, तुम यहाँ आओ, मेरी खिदमत करो। वो उसे नासमझी से देखने लगी। यार कुछ बोलो ना, ऐसा क्या लगता है मैं ही मियाँ और मैं ही बीवी हूँ? उसकी बात सुनकर हुरैन ने कहका लगाया था। गुड गर्ल, माई प्रिंसेस। उसने माथे पर लब रखते आगे बढ़ने की कोशिश की थी जब बेल बजी। कौन है मेरा दुश्मन? उसने हैरत से पूछा। मेड, उसने हंसते हुए बताया। ओह यस, इस दुश्मन को मैंने खुद दावत दी है, उसने सर हिलाते हुए कहा और बाहर की जानब बढ़ गया। उसे अपने साथ ले आया और काम समझाने का हुरैन को कहा। वो बताने लगी, बस हम दो हैं। वो काम समझाकर वापस आई तो जैन शाह कमरे में बैठा लैपटॉप खोले हुए था। मैं अकेले काम कर सकती हूँ, उसने नरमी से हल्की आवाज़ में कहा। मैं नहीं चाहता, बस आराम करो, ऑर्डर्स दो, मुझे अच्छी बीवियों की तरह मुझसे लड़ाई करो। उसने मुस्कुराकर हुरैन को अपने पास बिठाया। वो अफसुर्दा हो गई। रात डिनर के बाद वो कमरे में आई तो हल्का सा म्यूज़िक बज रहा था। उसने जैन शाह को देखा। वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। लेट्स डांस, उसने हथेली उसके आगे फैलाई। उसने जैन शाह की हथेली थाम ली और उसके साथ मूव करने लगी। हुरैन हंसती हुई उसके साथ स्टेप कर रही थी। उसे जो समझ आ रहा था वो करने लगती। जैन शाह उसे वो गिरने लगती तो जैन शाह उसे बचा लेता। उसे यकीन था आगे भी ज़िंदगी में हर मोड़ पर जैन शाह उसे ऐसे ही बचाएगा, उसे हमेशा सपोर्ट करेगा, उसे मोहब्बत और इज़्ज़त से रखेगा। उसने बोलना शुरू किया। कुछ दिन में तो जैन शाह हैरत और मोहब्बत से उसे देखते हुए बातें सुनता और कभी कभी वो उसे ही देखता रहता कि और और कहता, कौन सी नेकी का सिला हो तुम। उसने घर में बहुत सारी मशीन लगवा दी थी। हुरैन का घर वो चेकअप रेगुलर करता था, उसकी सेहत का ख्याल रखता, फ्रूट्स उसको खुद खिलाता और उसके लिए जो हो सकता वो करता। ये 5 सालों का अजाला था जो एक दिन में पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हुरैन उसे देखते कभी रोने लग जाती तो कभी वो इतनी मोहब्बत की हकदार कब से हो गई थी। ज़ैन शाह उसे मोहब्बत से बताता वो बहुत कुछ की हकदार है, लेकिन ज़ैन शाह उसे दे नहीं पा रहा था। उसके घर वालों ने बहुत बुलाया। ज़ैन शाह का जवाब होता, मेरी बीवी कंफर्टेबल नहीं हो सकती है, अब हम अपनी प्राइवेट लाइफ चाहते हैं। अस्पताल उसका अपना शुरू हो गया था और वो हुरैन को एक एक घंटे बाद कॉल करके पूछता था, वो कैसी है? हुरैन हंस देती, जैसी 1 घंटे पहले थी वैसी हूँ। वो मुस्कुरा देता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।